Hey everyone, welcome back to Real at the Curious Mind. So today our topic is interpreting the rise of the cockroach Janata Party. And I'm most sure you heard about it, है ना आजकल के न्यूज में. So I'm hoping you are doing really fantastic in the same way I am doing great too. तो बेसिकली इस आर्टिकल का मतलब क्या है हम इसको समझते हैं. इंटरप्रेटिंग मतलब होता है एनालाइज करना, विश्लेषण करना, समझना. और राज मतलब आप सभी जानते होंगे उभरना, लोकप्रिय बनना, है ना. ये कॉर्पोरेट जनता पार्टी का. तो the article explain how social media anger is creating new political movements, but emotionally unity alone cannot build a strong society. मतलब कि ये जो है लेख बताते हैं कि सोशल मीडिया का गुस्सा नए राजनीतिक आंदोलन बना रहा है, लेकिन सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव से मजबूत समाज नहीं बनता. और ये सिर्फ कॉर्पोरेट जनता पार्टी जो है ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, या ऐसे मतलब कॉकरोच का मतलब कहा जा रहा है जो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, है ना. तो चलिए इसको हम फिर से अच्छे से वन बाय वन पढ़ेंगे विद द सेग्रीगेशन, विद वोकैबुलरी, विद सेंटेंस, विद द फ्रेज, विद द इडियम. Without any delay, let's start our vocabulary session. So, interpreting the rise of the Cockroach Janata Party. Our first जो vocabulary होगा, easy होगा, formation. Formation means a group or organization created for a purpose. गठन और संगठन. Sentence would be a new political formation gained popularity online. एक नया राजनीतिक संगठन ऑनलाइन लोकप्रिय हो गया है ना. And the next is aggregating. Aggregating means collecting or bringing together, एकत्र करना. Sentence would be social media is aggregating public anger rapidly. सोशल मीडिया तेजी से लोगों का गुस्सा इकट्ठा कर रहा है. And the next is new apps aggregated information from many sources. New apps कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं. And the next is entrenched. Entrenched. Entrenched means strongly established and difficult to change. जो गहराई से जड़ जमाए हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? Entrenched. Sentence would be the movement challenged entrenched political system. आंदोलन ने गहराई से जमे राजनीतिक तंत्र को चुनौती दी है ना. And the next sentence would be corruption became deeply entrenched. That means भ्रष्टाचार गहराई से जड़ जमा चुका है. देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी वोकैबुलरी कुछ जो होती है हमारे न्यूज आर्टिकल से होती है और कुछ रियल लाइफ कन्वर्सेशन से भी जुड़ी होती है. तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे. और आपको वोकैबुलरी का और जो टेलीग्राम का लिंक चाहिए, मतलब वोकैबुलरी चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक पे आगे ले सकते हैं. यू कैन हैव इट इजीली. एंड सेकेंड इज सिंक्रोनाइज. Synchronized means happening together at the same time. एक साथ सम्मानित को बोलते हैं synchronized. Sentence would be online protest became digitally synchronized. Online विरोध डिजिटल रूप से सम्मानित हो गए हैं. And the second, the dancers moved in synchronized steps. नर्तक एक साथ तालमेल में चले. And the next is outrage. Outrage means strong public anger. गुस्सा, आक्रोश को बोलते हैं outrage. How could you make sentence with this? So public outrage is spread through social media. जनता का आक्रोश सोशल मीडिया पर फैल गया. And the next is the decision caused nation outrage. That means उस फैसले से राष्ट्रीय गुस्सा फैल गया. Okay, and the next vocabulary is erosion. ये आप इससे familiar होंगे. Like gradual weakening or destruction. जो क्षय होते हैं उसे बोलते हैं erosion. धीरे धीरे कमजोर होना. How could you make sentence with this? So the article talks about erosion of collective life. लेख जो है सामूहिक जीवन के क्षण की बात करता है. And the second sentence would be moral erosion harms society. नैतिक क्षण समाज को नुकसान पहुंचाता है. मतलब जो मोरालिटी है वो हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी को हार्म पहुंचाएगा. Okay, and the second vocabulary is collective belonging. Collective belonging. That means feeling connected to a community. That means सामूहिक जुड़ाव को बोलते हैं collective belonging. Sentence would be people are losing collective belonging. लोग सामूहिक जुड़ाव खो रहे हैं. And the next is festivals strengthen collective belonging.
त्यौहार सामूहिक जुड़ाव मजबूत करते हैं. And the next our vocabulary is fragmentation. Fragmentation that means breaking into a smaller disconnected parts. विखंडन को बोलते हैं fragmentation. Sentence would be social fragmentation weakens democracy. सामाजिक विखंडन लोकतंत्र को कमजोर करता है. And the next is the internet sometimes increase fragmentation. इंटरनेट कभी कभी विखंडन बढ़ाता है. ओके, आई होप इट्स फ्रेगमेंटेशन क्लियर हो गया होगा. और हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है एंटीगनिज्म. एंटीगनिज्म दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और हॉस्टिलिटी, मीन्स विरोध करना, शत्रुता करना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीगनिज्म. सेंटेंस वुड बी पॉलिटिक्स इज इंक्रीजली बिल्ड ऑन एंटीगनिज्म. राजनीति अब बढ़ते विरोध पर आधारित होती जा रही है. And the next is religious antagonism create conflicts. धार्मिक शत्रुता, antagonism मतलब शत्रुता, संघर्ष पैदा करती है. And the second is durable. Durable means long lasting and strong. यही जो कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो ऑनलाइन से ज्यादा फैल रहा है, तो ये ड्यूरेबल नहीं हो पा रहा है, इसे हमें ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा, है ना. तो लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग हुआ टिकाऊ. सेंटेंस विल बी सोशल सॉलिडरिटी मस्ट बिकम ड्यूरेबल. जो सामाजिक एकता है, सॉलिडरिटी है, वो टिकाऊ बनाना होगा. यही हमारे कांग्रेस जनता पार्टी को. एंड सेकंड, ड्यूरेबल पीस रिक्वायर्स ट्रस्ट. अस्थायी शांति के लिए विश्वास जरूरी है. ड्यूरेबल पीस रिक्वायर्स ट्रस्ट. एंड सेकंड इज institutionalized. Institutionalized means established as a system or institution. संस्थागत को बोलते हैं institutionalized. Sentence would be anger later became institutionalized politics. गुस्सा बाद में संस्थागत राजनीति बन गया है. And the second, corruption became institutionalized. भ्रष्टाचार संस्थागत बन गया. एंड आगे जो लास्ट है, आप इससे बिल्कुल familiar होंगे. डिसेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स डिस्टर्बिंग पावर अवे फ्रॉम वन सेंट्रल अथॉरिटी. मीन्स विकेंद्रीकरण करना, टुकड़े में बांटना कहो या फिर कहोगी सभी को अपना अलग अलग जिम्मेदारी दे देना, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना. सेंटेंस वुड बी यंग पीपल डिमांड डिसेंट्रलाइजेशन. युवा जो होती है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे हैं. एंड सेकंड, डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव्स पार्टिसिपेंट. विकेंद्रीकरण भागीदारी बढ़ाता है. तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, लर्न वर्ड्स और अंडरस्टैंड डीपली, एक्सप्रेस पावरफुली. Okay, now let's move on our important phrase and idiom. So our first idiom or phrase is collective outrage. Collective outrage. That means shared public anger among many people. सामूहिक आक्रोश को क्या बोलते हैं? Collective outrage. Sentence would be social media amplified collective outrage. That means social media ने सामूहिक आक्रोश को बढ़ा दिया है ना. And next is emotional charge. Filled with strong emotion. भावनात्मक रूप से उग्र को बोलते हैं इमोशनली चार्ज. ये तो गुस्सा हो गई, है ना. The sentence would be the debate became emotionally charged. बहस भावनात्मक रूप से उग्र हो गई. And the second is digital synchronization. Digital synchronization, that means people reacting together online at the same time. Digital समन्वय. डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन क्रिएटेड मास मोबिलाइजेशन. डिजिटल समन्वय ने बड़े आंदोलन को जन्म दिया. एंड सेकेंड, reactive mobilization, that means people gathering suddenly in reaction to something. प्रतिक्रियात्मक लामबंदी. The protest was a form of reactive mobilization. विरोध प्रदर्शन प्रतिक्रियात्मक लामबंदी का रूप था. And the second is shared antagonism, that means common hatred or opposition towards something. साझा विरोध करना, साझा विरोध, है ना, उसको क्या बोलते हैं? शेयर एंटागोनिज्म. शेयर एंटागोनिज्म यूनाइटेड द क्राउड टेम्पररली. जो साझा विरोध होता है ना, भीड़ को कुछ समय के लिए ही एकजुट करता है. वही कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन है, कुछ समय के लिए ही होगा, इसमें सॉलिडिरिटी नहीं दिख रही है ना. मतलब एकता दिखेगी तो कुछ दिन के बाद ही खत्म हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, है ना. तो as we know, हम पावरफुल लाइन्स पढ़ते हैं अपने एशिया डिस्कशन के लिए, राइटिंग के लिए, है ना. तो सेंटेंस वुड बी सोशल मीडिया कैन यूनाइट इमोशन फास्टर देन इंस्टीट्यूशन कैन बिल्ड ट्रस्ट. सोशल मीडिया भावनाओं को संस्थागत से
अधिक तेजी से जोड़ सकता है। एंड सेकेंड, एंगर कैन मोबिलाइज क्राउड्स बट ओनली ट्रस्ट कैन सस्टेन सोसाइटी। गुस्सा बिल्कुल जुटा सकता है लेकिन समाज में केवल विश्वास ही टिकाए रखते हैं, है ना। Last is digital politics often creates emotional unity without long-term solidarity. डिजिटल राजनीति अक्सर अस्थायी एकता के बिना भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना ये न्यूज आर्टिकल, और आप जैसे जानते हैं इसकी कंप्लीट करने के बाद से we just go on our news article there we can understand with segregation. So come on there, और मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं ज्यादा हिंदी में समझाऊं, कुछ चीजें को नाम ले लेती आर्टिकल को पढ़ पढ़ के। और मैं ऐसे पेन चला चला के मतलब जैसे होता है एडिटिंग वैसे नहीं कर पाती हूँ, बट आई होपिंग कि मेरा आवाज आपको क्लियर समझ में आता होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। So this is our news article. So simply the news article says social media can quickly unite people emotionally, but online anger alone cannot create long-lasting change in society. मतलब रियल चेंज जो नीड्स होती है उसको ट्रस्ट चाहिए, रियल कम्युनिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म यूनिटी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। मतलब आर्टिकल का जो मेन पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया लोगों को जल्दी एक साथ ला देता है और सबको इमोशनली कनेक्ट भी कर देता है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा, ऑनलाइन आउटरीच से सोसाइटी में परमानेंट चेंज नहीं आता। असली बदलाव के लिए हमें क्या चाहिए? भरोसा, असली लोगों का साथ, लंबे समय तक की एकता, मजबूत संगठन, है ना। तो चलिए सेक्शन वाइज बांटते हैं। तो हमारा सेक्शन फर्स्ट बांटेंगे इनिशियल मोबिलाइजेशन एंड डिजिटल आउटरोच बोल देती है, आउटरीच, डिजिटल सिंक्रोनाइज्ड एंगर। ऐसे मैंने बताया था सिंक्रोनाइज्ड मीनिंग क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर सेम इमोशनल फील कराना, उसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज्ड। सोशल मीडिया पर लोग एक मीम, रील या यूट्यूब देखकर एक साथ गुस्सा हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल देंगे तो ट्विटर ट्रेंड हो जाएगा, इंस्टाग्राम आउटरीच, हैशटैग मूवमेंट, एंड सब लोग एक ही इमोशन में आ जाते हैं, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इंट्रेंस्ड पॉलिटिकल अरेंजमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ था? उधर भी पढ़े थे लोग। पुरानी जो डीपली फिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम होती है वही होती है। इसका हिंदी मीनिंग होगा पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज या सिस्टम्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग जम चुके हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। यंगर पीपल इंक्रीजली फील डिस्कनेक्टेड एंड यंग पीपल फील पॉलिटिक्स डज नॉट अंडरस्टैंड देम। यंग जनरेशन को लगता है कि पॉलिटिशियन जो है उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं, जैसे कि जॉब, स्टेज, फ्यूचर फेयर्स, एस्पिरेशन, इसलिए वो पॉलिटिक्स से इमोशनली कट फील करते हैं। So collectively, emotionally intensity. That means a strong emotional feeling is shared by many people together. मतलब कि जब बहुत लोग एक ही टाइम से इमोशन फील करें तो एंगर, एक्साइटमेंट, प्रोटेस्ट स्पिरिट सब ये बढ़ जाता है। लाइक पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सिंक्रोनाइज्ड आउटरीच। मतलब कैन ओनली ऑनलाइन एंगर सस्टेन अ मूवमेंट। तो आर्टिकल पूछ रहा है क्या सिर्फ इंटरनेट का टेम्पररी गुस्सा किसी मूवमेंट को लॉन्ग टर्म चला सकता है? सो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोस्टली नो। एंड सेकेंड सेक्शन वुड बी इरोशन ऑफ कलेक्टिव सोशल लाइफ। इरोशन का मैंने हमने पहले बताया था, इसका मतलब होता है स्लोली बिकमिंग वीक और डिसअपियरिंग, धीरे धीरे खत्म होना। कलेक्टिव सोशल मीडिया में सोशल लाइफ में रियल लाइफ सोशल बॉन्डिंग एंड कम्युनिटीज। लाइक पहले लोग यूनियन की बात करते थे, कॉलेज, नेबरहुड्स, क्लब्स एंड कम्युनिटी ग्रुप्स में मिलते थे। अब लोग मोस्टली ऑनलाइन हो गए हैं। लाइक shared space meaning a place where people connect physically. तो ऐसा प्लेस जहाँ लोग रियल में मिलकर रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनाते थे, वहाँ पे जो था कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। तो फीलिंग ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी कम्युनिटी का हिस्सा फील कराना चाहते हैं ये, और हम सब एक हैं, लाइक दैट। सो हंग्री फॉर कलेक्टिव बिलोंगिंग। आज के लोग इमोशनली लोनली हैं और उन्हें किसी ग्रुप का एक पार्ट बनना है। सो यहाँ पे एक बात आ रही है फ्रीडम टू कंज्यूम एंड कम्पीट। कंज्यूम जैसे जानते हैं कि यूज करना, कम्पीट मतलब कंपटीशन करना। तो जो आर्टिकल का पॉइंट है कह रहा है मॉडर्न सोसाइटी बोलती है फ्रीडम मीन्स बाय व्हाट यू वांट टू एंड कम्पीट विद अदर्स, बट इसे पब्लिक यूनिटी वीक हो जाती है। ओके, एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर थर्ड होगा सिंक्रोनाइजेशन वर्सेस सॉलिडरिटी। और सिंक्रोनाइजेशन का पहले बताया है ये टेम्पररी इमोशनल कनेक्शन होता है, एक साथ जुटाएगा लेकिन ये टेम्पररी हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए सबका सेम इमोशन में आ जाना। फॉर एग्जाम्पल वायरल हैशटैग, ऑनलाइन आउटरीच एंड ऐसे जो जैसे कनेक्शन हो जाते हैं लेकिन कुछ ही समय के लिए।
और solidarity, ये पहले लोग यूज करते थे, यानी लॉन्ग टर्म यूनिटी एंड सपोर्ट। सो लंबे टाइम की असली एकता सपोर्ट है, ऐसे कहा जा रहा है ना। तो लाइक एंगर स्प्रेड्स फास्टर देन प्रॉपर प्लानिंग। इंटरनेट पर जो गुस्सा होती है बहुत जल्दी वायरल होती है। तो लेकिन प्रॉपर मोमेंट बिल्ड करना डिफिकल्ट होता है। एंड सेकंड हम लोग सिमुलेशन करेंगे क्रॉस कंट्रीज कंपैरिजन, मींस digitalized swarm, that means crowd, like leaderless digital crowd, ऑनलाइन भेड़ जिसमें कोई क्लियर लीडर नहीं होता है ना। और यहाँ पे क्या कहा है कि बिकमिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम, मतलब कि जो प्रोटेस्ट सिस्टम के अगेंस्ट था बाद में वही ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन गया। एंड और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि push and pull driven modernization, that means modern development based on oil coal energy system। आज की जो मॉडर्न दुनिया है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, सब ह्यूज सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम पर ही डिपेंड है। और सेक्शन अब जो 5 होगा वो होगा साइकोलॉजिकल ट्रैप एंड सेंट्रल पॉइंट, दैट मीन्स इमेंसिपेटरी मतलब गिविंग फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, आजादी देने वाला। यहाँ पे एक और न्यूज बात किया गया है कि जो जजेस लाइकन जो थे उनका जो वार्निंग है कि व्हाट यू एस्पायर टू एज अ रिवोल्यूशनरी इज द मास्टर, यू विल गेट वन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल से वी वांट फ्रीडम बट ऑफन दे अननोइंगली सर्च फॉर अनदर पावरफुल लीडर। कह रहे हैं कि जो लाइकन कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं पुराने रूलर से गुस्सा होते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, लेकिन एंड में किसी नए पावरफुल लीडर को फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो यानी कि ओल्ड मास्टर गया और न्यू मास्टर आ गया। तो फाइनल सेंटर पॉइंट है इसका कि पीपल इमोशनली वांट डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्रीडम, बट society still depends on centralized power, governments, corporation, technology system. So all and out it keeps repeating anger, protest, collapse and new power. लोग इमोशनली फ्रीडम हो जाते, लाइक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में इंटरनेट, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट्स, लाइक टेक्नोलॉजी सब सेंट्रलाइज सिस्टम पर ही डिपेंड है। इसलिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट रिपीट होते रहते हैं, लाइक गुस्सा आएगा, प्रोटेस्ट करेंगे, टेम्पररी चेंज होगा, फिर नया फुल पावर सिस्टम आ ही जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये आर्टिकल जो कहना चाहता है कि सोशल मीडिया कैन क्रिएट फास्टर इमोशनल यूनिटी बट रियल लॉन्ग टर्म चेंज नीड्स स्ट्रॉन्ग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। I hope it's clear now, and till then bye, be happy and keep watching this video and don't like feel bad whenever you listen any background issue, background noise. Till then be happy, like be bye, stay tuned here and keep watching. Till then bye, be happy.